आप लोग लाइव चले जाओ वहाँ पे फेसबुक अपना खोल के take along the cat with you, right? Okay, so Namaste Kamlapa. We are finally Walaikum Assalam. We are live on Facebook, and I don't know why this happens. That every time we have a session, something unexpected comes up, like something that I do not even foresee. Like you wouldn't even believe that, right? 2 minutes before the session, there was an entire blackout, and I was like, "Oh my god!" And I have to think of a backup. So I formally apologize to you, and I am not late, Latif. I mean, खवातीन को तो आदत हो ऐसी इमरजेंसी थी, हमारी जिंदगी में हमेशा होती रहती हैं, तो it's all right. So Kamlapa, thank you so much once again for taking out the time for this session. And this is something which we actually genuinely need to talk about, particularly after the Aurat March here in Pakistan and a lot of the things that are happening around the globe vis-a-vis post-Women's Day campaigning. There is a clear need to once again stress about the true meaning of feminism and what it entails and what it constitutes. So first of all, I would like to ask you, how was International Women's Day 2021? Well, I mean, at some places it was wonderful. In Delhi, we had it in the heart of the city, and the farmers' protests which are going on, they decided to celebrate Earth March with women farmers, and the estimates are 50,000 to 70,000 women. We have never had such a large crowd. We've never had such a partnership between farmers and feminist movement and feminist agendas. So it was wonderful. And everywhere, because of COVID, at places it has been online, but at other places they did meet. So mashallah, बढ़िया चल रहा है. I am so glad to hear that. And I also wanted to thank you for your participation in the event hosted by Dastak. Because although whatever you said was actually quite apt and timely, and it definitely helped us in setting our path towards the right direction in terms of fighting for gender equality in South Asia. So thank you so much for that as well. Having said that, Kamlapa, I'll formally start the conversation for today without any further delay. And like we discussed about gender and difference between gender and sex, then we talked about patriarchy and how it is connected to different forms of violence against women. So today we are here to talk about feminism, which is a perfect antidote to patriarchy, like very beautifully mentioned by you in the Facebook post as well. So first of all, I would like for you to very briefly and candidly talk about what is feminism. And when you say that you are a feminist, and when I say I am a feminist, what do we really mean by that? तो फेमिनिज्म जैसा कि लफ्ज से ही मालूम पड़ रहा है, ये इंग्लिश में फेमिनिज्म एक फ्रेंच वर्ड से आया है, फेमिनिन से नहीं आया जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं. फेमिनिन शायद फेमिनिज्म का बिल्कुल उल्टा है. फेमिनिन एक जेंडर्ड कॉन्सेप्ट है. मैं पैदा होती हूँ फीमेल और मुझे फेमिनिन बनाया जाता है दुपट्टे पहना के, कान छेद के, नाक छेद के. दैट इज फेमिनिनिटी. फेमिनिज्म जो लफ्ज आया है वो एक फ्रेंच वर्ड से आया है जो है फार्म, FEMME, फार्म. और इसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हिंदी में है नारीवाद.
वुमनिज्म। तो वुमनिज्म की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि औरत दबी हुई थी, दबाई गई थी, उसकी नजर से दुनिया नहीं देखी जा रही थी। तो फेमिनिज्म की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर हमारी जिंदगी में पेट्रियार्की ना होती, पिदरशाही, मर्दशाही ना होती। जैसे लेबर मूवमेंट की जरूरत नहीं होती अगर कैपिटलिज्म के हकूक न मार रहा होता। ब्लैक लाइव्स मैटर की जरूरत ना पड़ती अगर वाइट रेस उन पर हावी ना होती। तो फेमिनिज्म पेट्रियार्की के खिलाफ और पेट्रियार्की के खिलाफ, मर्द हजरात के खिलाफ ये कभी नहीं रहा और ना कभी होना चाहिए। ये एक सोशल सिस्टम जो पेट्रियार्की है, जो मैंने पिछली मर्तबा जिस पर बात की थी, और ये सोशल सिस्टम पूरी दुनिया में है कि मर्द बेहतर हैं, उनको हर चीज पर ज्यादा हक है और वो दुनिया चलाते हैं। और हम ये मानते हैं कि हर इंसान बराबर पैदा होता है। और जैसा कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने कहा है, मैं रिपीट करती हूं, आर्टिकल 1, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल विद डिग्निटी एंड राइट्स। और ये किसने कहा? ये हमारे दुनिया की तमाम सरकारों ने मिलकर 10 दिसंबर 1948 को कहा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं एक इंसान पैदा होती हूं और आजादी, हकूक, डिग्निटी और राइट्स ये मुझे पैदा होते ही मिलने चाहिए। और जो भी सिस्टम ये मुझे नहीं लेने देता, अगर मैं ब्लैक हूं तो नहीं लेने देता, अगर मैं सो कॉल्ड हमारे साउथ एशिया में लोअर कास्ट हूं तो मुझे यह नहीं मिलता, अगर मैं औरत हूं, हमारे मुमालिक में अगर मैं माइनॉरिटी को बिलोंग करती हूं, तो ये चीजें मुझे मुहैया नहीं होती। तो ये मेरे ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। तो विमेन्स राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, ये फेमिनिस्ट स्लोगन है। और ये हम लोग कोई 30 साल पहले हम साउथ एशियन फेमिनिस्ट, 25-30 साउथ एशियन फेमिनिस्ट एक वर्कशॉप में मिले थे। तो हमने कहा कि देखो, फेमिनिज्म की डेफिनेशन अलग अलग है, हम साउथ एशिया में इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो हमने बहुत बातचीत की और एक छोटी सी डेफिनेशन हमने बनाई। वो क्या? कि फेमिनिस्ट कौन है? एनीवन हु recognizes that women and girls are discriminated against। ठीक है? जो भी इस चीज को मानने को तैयार है कि हमारे माशरे में औरत और लड़की को कमतर माना जाता है। कहां कहां पर कमतर माना जाता है? विद इन द फैमिली, एट द प्लेस ऑफ वर्क एंड इन सोसाइटी इन जनरल। फैमिली में, काम की जगह पर और समाज में हर जगह। और जो इंसान इसके खिलाफ कोई एक्शन लेती और लेता है वो फेमिनिस्ट है। यानी पेट्रियार्कल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक्शन फेमिनिस्ट है। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा और गहराई से देखो।
इस डेफिनेशन में ये कहीं नहीं कहा गया कि कोई औरत जो इसके खिलाफ एक्शन लेती है। यानी हम साउथ एशियन फेमिनिस्ट के लिए अगर कोई मर्द भी पेट्रियार्की के खिलाफ एक्शन लेता है वो भी फेमिनिस्ट है। दूसरा, इस डेफिनेशन में कहीं नहीं कहा गया कि अगर मैं किसी तंजीम में काम करती हूँ, दस्तक में काम करती हूँ, संगत में काम करती हूँ, औरत मार्च में जाती हूँ, नारे लगाती हूँ, तभी मैं फेमिनिस्ट हूँ। मैं एक्शन कैसे लेती हूँ वो नहीं कहा गया। तो हमारा इससे क्या मुराद, हमारी क्या मुराद थी? मुराद ये थी कि मैं जहां भी हूं मैं एक्शन लेती हूं। अगर मैं 2 बच्चों की मां हूं, एक लड़का है एक लड़की है, और मैं उन्हें बराबर समझती हूँ, बराबर की फैसिलिटीज, बराबर के हकूक, रिसोर्सेज देती हूँ, तो मैं फेमिनिस्ट हूँ। इसी तरह अगर मैं बाप हूं तो मैं भी यही करता हूं। अगर मैं टीचर हूं किसी स्कूल में या यूनिवर्सिटी में तो वहां भी मैं ये करती हूँ। जर्नलिस्ट हूं तो जर्नलिज्म में मैं देखूं कि मैं कैसे पेट्रियार्की के खिलाफ कुछ कर सकती हूँ। अगर मैं गाने लिखती हूं तो मेरे गानों के थ्रू मैं वो लिखूं, मेरे स्लोगन्स के थ्रू लिखूं। अगर मैं जज हूं, पुलिस वाली या वाला हूं, तो मैं जहां भी हूं इंसान को इंसान समझ के एक्ट करूं, उनके साथ इंटरैक्ट करूं। तो यही है हम लोगों का फेमिनिज्म। और लेकिन एक बात जो और हमें समझ लेनी चाहिए कि फेमिनिज्म सिर्फ एक नहीं है, जैसे मजहब एक नहीं है, अनेक मजहब है। इस्लाम एक नहीं है, शिया है, सुन्नी है। हिंदुइज्म एक नहीं है, सोशलिज्म एक नहीं है। इसी तरह फेमिनिज्म भी एक नहीं है। और समझ में आता है क्योंकि फेमिनिज्म हिस्टोरिकल है, कॉन्टेक्सचुअल है। इंडिया के में पेट्रियार्की थोड़ी फर्क है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तानी फेमिनिज्म और इंडियन फेमिनिज्म बिल्कुल एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग किस चीज के खिलाफ लड़ाई कर रहे हो? जो पाकिस्तान में पेट्रियार्की है आप उसके खिलाफ लड़ाई कर रहे हो ना। ये कोई थ्योरेटिकल लड़ाई तो नहीं है कि हम पेट्रियार्की के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। भाई पेट्रियार्की पाकिस्तान में फर्क है, लाहौर में फर्क है, बलूचिस्तान में फर्क है, अमेरिका में पेट्रियार्की फर्क है। तो वो लोग डाउरी के खिलाफ नहीं लड़ते, वो सत्य के खिलाफ नहीं लड़ते क्योंकि वहां नहीं है। और हम लोग ब्लैक इश्यूज पर यहां नहीं लड़ते क्योंकि यहां रेसिज्म नहीं है। अफ्रीका में फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन है तो वहां उसके खिलाफ लड़ाई है, यहां नहीं है ज्यादा। अब तो मालूम पड़ रहा है कि हमारे मुमालिक में भी है, और पहली बार हम 2-3 साल से बोलना शुरू किया है। श्रीलंका से आवाजें उठी हैं, इंडिया से आवाजें उठी हैं। आपके यहाँ की आवाज मेरे कान में अभी तक नहीं आई है, तो पर यहाँ तो उठ गई है। तो चूंकि फेमिनिज्म पेट्रियार्की के खिलाफ है, और ये कोई थ्योरी नहीं है कि जो अमेरिका में हो रहा है वही हम करेंगे, नहीं, जो हमारे यहाँ हो रहा है वो हम करेंगे। और जो 80 में हो रहा था तब हम 80 वाली पेट्रियार्की के खिलाफ थे, तब हम डिजिटल पेट्रियार्की पर बात नहीं करते थे क्योंकि तब डिजिटल वायलेंस नहीं थी। आज हम करते हैं। इंडिया में 70s में सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन नहीं होते थे तो उसके खिलाफ कोई कैंपेन्स नहीं थे। आज वो होता है तो हम करते हैं। तो फेमिनिज्म जुदा जुदा है, कंटेक्सचुअल है, हिस्टोरिकल है। और चूंकि जो लोग इसके खिलाफ बोलते हैं पेट्रियार्की के खिलाफ, उनकी पोजीशंस भी फर्क हैं।
तो एक गरीब औरत के लिए पेट्रियार्की का मायना दूसरा है और एक अमीर औरत के लिए पेट्रियार्की का मायना दूसरा है। तो एक अमीर औरत का फेमिनिज्म भी फर्क होगा और एक गरीब औरत का फेमिनिज्म फर्क होगा। तो इन तमाम चीजों को हमें समझना है और देखना है कि इसमें एक नहीं हो सकता फेमिनिज्म। जी ये कमला आपा, मुझे जो इस चीज से समझ आती है वो ये समझ आती है कि एक तो फेमिनिज्म इज अ थॉट प्रोसेस व्हिच कंपेल्स अस टू थिंक अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन दैट एग्जिस्ट्स विद इन द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ जेंडर रोल्स and gender stereotypes and norms that define women in a certain way and men in a certain way. बट इससे एक और चीज जो मुझे समझ में आती है वो ये भी आती है कि देर इज प्लुरलिटी ऑफ फेमिनिज्म्स, like my feminism might be different than your feminism, and your feminism might be different than someone else's feminism, because we are all living under different circumstances, different conditions. So we are going to be fighting that sense of patriarchy as per our own context. But इस चीज को कि अगर आप कुछ एग्जांपल्स दे के थोड़ा सा इसको फर्दर इलैबोरेट करें कि what do we mean actually when we say there is plurality of feminism, and every woman is a feminist when she is trying to challenge the existing patriarchal gender roles, no matter where she is, even if she is the prime minister of a country or even if she is a farmer in a certain country. So if you can just explain that in more detail. मैं करती हूँ, लेकिन इसके पहले जो तुमने कहा कि फेमिनिज्म इज ए थॉट प्रोसेस, yes, but it is not only a thought process, it is a thought process and it is an action program. जैसे पेट्रियार्की भी सिर्फ एक थॉट प्रोसेस नहीं है, वो एक आइडियोलॉजी है और एक स्ट्रक्चर है। सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं है कि भाई औरतें नीचे हैं, ये नहीं है, हमें जायदाद नहीं मिलेगी, घर का सारा काम हम करेंगे, हमें कहा जाएगा बाहर मत जाओ। तो पेट्रियार्की एक एक्शन है, बाहर मत जाओ, तुम औरत हो, सिर ढको, तुम औरत हो। तो बोथ, दे आर बोथ एन आइडियोलॉजी। पेट्रियार्की की आइडियोलॉजी है मर्द बेहतर है, औरत कमतर है। फेमिनिज्म की आइडियोलॉजी वो है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं औरत और मर्द बराबर है। पेट्रियार्की आज मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और मैं ये मानती हूं हर औरत और आदमी जो आज पेट्रियार्की के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशंस की इज्जत करते हुए उन्हें लागू करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ नेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस को नहीं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो दुनिया की 99% सरकारों ने माना है उसके तहत कर रहे हैं। ठीक है, अब तुमने कहा कि फर्क क्यों है? फर्क इसलिए है कि जो किसान औरत है, फार्मर औरत है, वो उसकी मांग होगी कि भाई मेरी गेहूं को, मेरे गंदम को पूरी कीमत दी जाए, तो वो उसके लिए लड़ेगी। मुझे भी बाजार में जाके गंदम बेचने का हक हो, मेरे नाम पर भी जमीन दी जाए, वो उसकी लड़ाई है। अब मैं कमला, आई एम नॉट अ फार्मर, मैं उसके लिए तो वो लड़ाई लड़ सकती हूं, बट मेरी लड़ाई ये है कि जब भी मैं कहीं लेक्चर देने जाती हूं तो सबसे पहले अखबार मेरे कपड़ों के बारे में क्यों बात करता है? जो मैं कह रही हूं उसके बारे में बात कर लो ना भाई, मेरे बालों के बारे में क्यों बात करता है? कोई औरत प्राइम मिनिस्टर है तुमने कहा, तो अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है तो उसका सवाल ये होता है कि मैं कौन सी साड़ी पहन के, कौन सी सलवार कमीज पहन के आज तकरीर कर रही हूं, उस पर क्यों नजर जाती है। जब कोई मर्द प्राइम मिनिस्टर इस तरह बोलते हैं तो आप कहते हैं उन्होंने क्या कहा।
और यहां आप पहले 5 मिनट मेरे कपड़ों, मेरी शक्ल, मेरी लिपस्टिक, मेरे फलाने फलाने पे चले जाते हो, तो ऑब्वियसली मैं अगर यूनिवर्सिटी में हूं तो मैं मी टू की बात करूंगी कि मेरे प्रोफेसर ने मेरे साथ गलत वो गलत पेश आए। मगर एक औरत जो घरों में काम करती है, डोमेस्टिक वर्कर, वो उसके डोमेस्टिक फील्ड में क्या उसके साथ गलत हो रहा है, उसको वीकली छुट्टी नहीं दी जा रही, उसको 8 घंटे काम की जगह 20 घंटे काम करवाया जा रहा है। तो वही बात है कि फेमिनिज्म इज नॉट ओनली ए थॉट प्रोसेस, इट इज डीलिंग विद आवर सोशल रियलिटीज। ये कोई फलसफा नहीं है, ये जिंदगी की हकीकत है जो हमें मजबूर करती है कि हम अपने इंसानी हकूक के लिए लड़ें और कहें हम औरतें भी इंसान हैं और विमेन्स राइट्स आर ऑल्सो ह्यूमन राइट्स। सीधी सी बात। कमला आप आगे प्लुरलिटी और फेमिनिज्म पे बात करेंगी ना अभी? नहीं, तुम्हें और कुछ पूछना हो तो मैं तो ये कह रही हूँ कि प्लुरलिटी इसलिए है क्योंकि पेट्रियार्की प्लूरल है। और मैं यहां अब ये कहना चाहती हूँ कि औरत और मर्द सब एक नहीं होते। औरत और मर्द और भी बहुत कुछ होते हैं। दोनों औरत और मर्द होने के साथ साथ अमीर और गरीब भी होते हैं। अब मैं अमीर औरत हूं, मेरे घर में काम करने वाली वो गरीब औरत है, तो उसके और मेरे मसाइल एक नहीं है। मैं औरत उसके हकूक छीनती हूं, मैं अमीर हूं, मैं उसकी एम्प्लॉयर हूं, and I can be exploiting her, I can be discriminating against her. तो ये तो नहीं हो सकता कि सब औरतें क्यों नहीं एक दूसरे का साथ देती। अरे उसको तो मैं 12 घंटे काम कराती हूँ, तो मैं क्या साथ, वो मेरा क्या साथ देगी? उसको तो सवाल उठाना पड़ेगा कि आप औरत हैं मगर आप मेरा तो तशद्दुद कर रही हैं, मुझे एक्सप्लॉइट कर रही हैं। ठीक इसी तरह अमेरिका में औरतें व्हाइट भी हैं और ब्लैक भी हैं, और ब्लैक औरतों को कितने 100 साल तक कॉलोनाइज किया गया, दबाया गया। इंडिया में औरतें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। तो अगर मेरी तंजीम में कोई मुसलमान औरत है तो वो मुझे कहेगी कि कमला भाई आपका फेमिनिज्म मुसलमान औरतों की बात ही नहीं करता। आप जब कोई प्रोग्राम करने लगती हो तो वहां दिया जलाने लग जाती हो, जो कि हमारी कल्चर में नहीं है, हमारे मजहब में नहीं है। क्योंकि हम औरतें हैं मगर हमारा मजहब जुदा है, तो हमें उसकी इज्जत करनी पड़ेगी, उसको मानना पड़ेगा। ठीक इसी तरह कास्ट, मैं सो कॉल्ड अपर कास्ट से हूं। अब आप लोग पंजाब के हैं और बलोचिस्तान वाले आपको कहते हैं कि भाई आप तो बस पंजाब की बात करते हैं, बलोचिस्तान में क्या हो रहा है पॉलिटिकली आप कभी सोचते हैं हमारे बारे में? तो बलोचिस्तान की औरत बलोची भी है और औरत भी है, और उसके मसाइल अलग हो सकते हैं। और औरत मार्च क्या उसके मसाइल भी उठाता है, गरीब औरत के भी। तो दिस इज, आजकल इस चीज को नाम दिया जा रहा है कि फेमिनिज्म को इंटरसेक्शनल होना पड़ेगा। इंटरसेक्शनल क्या कि हम अलग अलग सेक्शंस में बटे हुए हैं और हम कई सेक्शंस में होते हैं। मैं औरत हूं, सो कॉल्ड अपर कास्ट औरत हूं, अपर क्लास औरत हूं, हिंदू औरत हूं। तो इंडिया में मैं औरत होते हुए भी पावरफुल हूं, क्योंकि अपर कास्ट, अपर क्लास हूं और हिंदू हूं। इसका मतलब
तमाम मर्दों से ज्यादा पावरफुल हूं। इससे ये भी आपको पता लगता है कि हर औरत हर मर्द से लेस पावरफुल नहीं है। मैं औरत होते हुए, ही पावरफुल हो। मैं अमीर औरत होते हुए ड्राइवर को हुक्म दे सकती हूँ कि ड्राइवर गाड़ी लाओ, और वो मर्द होते हुए भी मेरे लिए गाड़ी लाएगा। मैं दफ्तर में प्रोफेसर हूं, वहां पर मेरे नीचे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको मेरा हुक्म मानना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी औरत का हुक्म नहीं मान रहे, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का हुक्म मान रहे हैं, जो कि मैं हूं। तो इस इंटरसेक्शनैलिटी को समझते हुए हमें चलना पड़ेगा। और यहां पर एक जो और बात इंटरसेक्शनैलिटी में आती है वो ये है कि पेट्रियार्की, कास्ट, क्लास, रिलीजन, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रिलीजन बिना पेट्रियार्की के चल ही नहीं सकते, और रिलीजन्स पेट्रियार्कल हैं। तमाम रिलीजन्स मर्दों के हाथ में है, और वो तय करते हैं कि औरत के क्या हकूक हैं, उसको क्या मिलेगा, वो कितनी शादी कर सकती है, उसकी गवाही कितनी इंपॉर्टेंट है, या हिंदुओं में वो उसका कन्यादान होगा, वो करवा चौथ करेगी। क्रिश्चियनिटी में द ब्राइड्स फादर विल गिव अवे द ब्राइड टू द ब्राइडग्रूम। तो रिलीजन तब तक नहीं चल सकते जब तक पेट्रियार्की ना हो। तो रिलीजन चलाने के लिए भी पेट्रियार्की जरूरी है, और पेट्रियार्की मत की मदद करने के लिए रिलीजन जरूरी है। हमें कह दिया उन्होंने कि देखो अल्लाह मियां ने ये कहा है या भगवान ने ये कहा है, तो फिर हम चुप हो जाते हैं, हम डरते हैं। But this becomes a, isn't it a vicious cycle that one thing is adding to the another and then one thing is feeding the other, and then it has become a cycle in which we are marginalizing and subjugating women for over centuries. So how can we break into this cycle? पहले तो Like, हम साइकिल नहीं है, इंटरसेक्शनैलिटी को समझो। दिस इज नॉट जस्ट अ साइकिल, ये इंटरसेक्शनल है, everything is interconnected. इंटररिलेटेड। अब कास्ट सिस्टम क्या है कि आप किसी और से शादी नहीं करोगे, ना लड़का किसी और से शादी करेगा कास्ट की बाहर, ना लड़की। ठीक है, ये कब हो सकता है? जब उनके अब्बा हुजूर दोनों को कंट्रोल करें, यानी पेट्रियार्की हो दोनों पर, तभी तो हो सकता है। वरना आप कैसे? अब हिंदू मुसलमान शादी नहीं करेंगे, क्यों, कैसे नहीं करेंगे? जब तक उनको रोका जाएगा, पेट्रियार्की रोकेगी कि देखो हम तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं देंगे अगर तुमने हिंदू से शादी कर ली या तुमने मुसलमान से शादी कर ली। तो इन तमाम चीजों के लिए पेट्रियार्की की जरूरत है। तो यानी हमको 4 सिस्टम्स ने जकड़ा हुआ है, और वो सिस्टम्स आपस में जुड़े हुए हैं। और ये सिर्फ औरत मर्द के चक्कर में नहीं है। आप दूसरी इंटरसेक्शनैलिटी बिना जेंडर के देख लो। इंडिया में मुस्लिम्स, जो मुसलमान गरीब है वो और दबे हुए हैं, जिनको कहा जाता है लोअर कास्ट वो और भी दबे हुए हैं, वो 3 चीजों से दबे हुए हैं। तो दिस इज इंटरसेक्शनैलिटी। और जो ताकत वाले हैं वो 3 ताकत उनके साथ है। वो मर्द भी है, वो अमीर भी है, वो अपर कास्ट भी है, वो वडेरा भी है, और वो मुस्लिम भी है। उसके पास 5 किस्म की ताकत है, और वो आसानी से हार मारने वाला नहीं है। एंड ऑन द ऑपोजिट साइड आर पीपल जो 5-4 वीकनेसेस से जुड़े हुए हैं। So these are the things which one has to understand। और इसीलिए मुझे बहुत दुख होता है जब कहीं भी लोग फेमिनिज्म को बिना समझे सवाल करने लगते हैं, इन कॉम्प्लेक्सिटीज को नहीं समझते। और हम फेमिनिस्ट भी, हमें क्या मालूम है हमें इन सब चीजों के बारे में? क्या हम जानते हैं इनके बारे में? हम कितना पढ़ते हैं? हमारी आउटपुट ज्यादा होती है, बकबक हम ज्यादा करते हैं, इनपुट कम होती है कि कितना पढ़ रहे हैं, कितना समझ रहे हैं।
और जो सबसे बड़ी चीज जो समझने वाली है पेट्रियार्की के बारे में और फेमिनिज्म के बारे में, वो ये है कि पेट्रियार्की सिर्फ औरतों को बर्बाद नहीं करती, ये मर्दों को भी बर्बाद करती है। इसके बारे में मैंने पिछली बार बताया था। और अगर फेमिनिज्म पेट्रियार्की के खिलाफ है तो क्या मर्दों को पेट्रियार्की के खिलाफ नहीं लड़ना है? क्या मर्दों को इस बात से नहीं बचना है कि उन्हें रोने नहीं दिया जाता, उन्हें अपने मर्जी की नौकरी नहीं करने दी जाती, उन्हें अपनी मर्जी की शादी नहीं करने दी जाती, मर्जी के कपड़े नहीं पहनने दिए जाते, कमाई का सारा बोझ उन पर डाल दिया जाता है कि वही बेचारे कमाएंगे? जितनी डेंजरस नौकरियां हैं वो मर्दों को सौंप दी जाती हैं कि वही करेंगे, फौज में भी वही जाएंगे, पुलिस क्यों जाएंगे भाई? आधी जनता औरतों की है, उनको भी तो पूछा जाए कि वो क्यों नहीं कमा सकते। तो इसका मतलब है, मैं तो ये समझती हूँ कि पेट्रियार्की अगर औरत को बर्बाद करती है, मर्द को बर्बाद करती है, ट्रांसजेंडर को बर्बाद करती है, गेज को बर्बाद करती है, और अगर पेट्रियार्की के खिलाफ लड़ने वाली आइडियोलॉजी और एक्शन फेमिनिज्म कहलाता है, तो क्या इन सबको फेमिनिस्ट होना जरूरी नहीं है? क्या हमारी अलायंसेस जरूरी नहीं है? तो मैं समझती हूं जरूरी है। और इसीलिए आज जो फार्मर्स हैं लाखों की तादाद में, उन्होंने 8 मार्च मनाया, क्योंकि उनको लगा जब तक हमारी औरत भी हमारे साथ नहीं खड़ी होगी, हमारा मूवमेंट आगे बढ़ ही नहीं सकता। और इसीलिए मार्क्सिस्ट को अपनाना पड़ा कि वर्किंग क्लास में औरत भी है, मर्द भी है, औरत भी मजदूर है, मर्द भी मजदूर है। अगर वो तमाम इकट्ठे होंगे तब मजदूर जीतेंगे, या आधे इकट्ठे होंगे तब मजदूर जीतेंगे? मतलब सोच के देख लो ना भाई। सो दीज आर दी। बिल्कुल बिल्कुल। कमलापा, किसी ने मुझसे वैसे ही रैंडम कॉन्वर्सेशन में मैं शेयर कर रही थी कि वी आर डूइंग अ सीरीज ऑफ सेशंस विद यू, so somebody asked me to request you to shed light on two things. A, what is male privilege? Like, this is a statement that is very easily thrown, or discussed in our society, that men need to recognize male privilege in order to understand and stand against patriarchy. And another question was that what are the things that prevent men from accepting feminism as a as a progressive movement, thought process, and an action program, as very beautifully explained by you. So I would like to know your thoughts on that. Can we, before that, can I just say one or two other things? Okay. मैं दोहराना चाहती हूँ कि फेमिनिज्म मर्दों के खिलाफ नहीं है, पेट्रियार्की के खिलाफ है। फेमिनिज्म ग्लोबल है मगर मुख्तलिफ है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि फेमिनिस्ट जो स्ट्रगल्स रही हैं वो ज्यादा वर्किंग क्लास औरतों ने की हैं। ये एक मिथ है कि सिर्फ मिडिल क्लास औरतें जो हैं वो फेमिनिस्ट हैं। आपके यहाँ भी, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी अगर आप देखें कि किस बड़ी तादाद में औरतें आगे आती हैं जब वो गरीब होती हैं किसी भी मूवमेंट में, हम सिर्फ मीडिया में ज्यादा दिखाई देती हैं। वो इसलिए कि मीडिया के लिए बहुत आसान होता है कि चलो जी फेमिनिज्म पे बात करनी है, हीरा अमजद को फोन कर लो, फोन पे बात हो जाएगी। किसी गांव वाली औरत से राब्ता करने में तो बेचारे को कार लेके गांव जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी। यहां तो फोन पे मैम एक बाइट दे दो, वो फोन पे बाइट लेके उनका काम हो गया। और ये हमारी भी गलती है कि हम उन्हें नहीं कहते कि भाई मुझसे सिर्फ क्यों पूछ रहे हो, तुमने क्या गांव की औरतों से पूछा है, क्या वहां गए थे? तो हम भी बड़े खुश होते हैं, हमारी तस्वीर आ जाती है दूसरे दिन, हमारा नाम आ जाता है, तो हमें और क्या चाहिए। तो और जैसे अभी 8 मार्च जो हमने मनाया, आपने और हमने, किसने शुरू किया था? वर्कर्स इन द यूएस,
वर्कर्स इन रशिया। तो मैं और तुम जो अपर क्लास से आते हैं, हमें समझना होगा कि इसमें हमारी लीडर्स जो थी वो शायद अनपढ़ औरतें थी मगर मजदूर औरतें थी जो हमारे मुल्क चला रही थी, और हमें उनसे सीखने को भी तैयार होना होगा। हमें हमेशा इन मूवमेंट्स में लीडर बने नहीं घूमना। और मैं तो 1980s से सुन रही हूँ कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा ग्रुप था फेमिनिस्ट का वो सिंधियानी तहरीक थी। 80s में जब हमें फेमिनिज्म का नाम नहीं पता था और सिंधियानी तहरीक की औरतें गाने गा रही थी, तहरीक सिंधियानन जी, तहरीक सिंधियानन जी। उसके बाद जो लड़ाई आपके यहाँ लड़ी वो जो विमेन फार्मर्स थी जिनकी जमीनें आर्मी ने ले ली थी, जिन्होंने वो ठट्ठा मूवमेंट चलाया, कपड़े धोने का डंडा लेके जो आर्मी से कहा कि हमारी जमीनें वापस करो, पंजाब में वो थी। विमेन वर्कर्स आपके यहाँ कब से लड़ाई लड़ रही हैं। तो ये चीज हम और समझ लें। और दूसरी चीज ये है कि फेमिनिज्म शुड बी पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। ये सिर्फ 8 मार्च को मनाने वाली चीज नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ कहीं वेबिनार में कमला और हीरा बैठ के बात करें। फेमिनिज्म हैज टू बी ए लिव्ड एक्सपीरियंस। मुझे फेमिनिज्म को मानना नहीं है, मुझे फेमिनिज्म को जीना है, मुझे जीना है। इट हैज टू बी पार्ट ऑफ माई लिव्ड एक्सपीरियंस। ये नहीं हो सकता कि मैं बात फेमिनिज्म की करूं और अपनी बेटी का निकाह में मैं इतना बड़ा दहेज दूं और उसका निकाह में मैं करोड़ों रुपया खर्च करूं और फिर कहती फिरूं कि मैं फेमिनिस्ट हूं। मैं कहती फिरूं कि मैं फेमिनिस्ट हूं मगर मेरे से अपना सूटकेस ना उठे, और मैं बॉयफ्रेंड के साथ जब भी कहीं रेस्टोरेंट में जाऊं, बिल देने का जब टाइम आए तो मैं टॉयलेट चली जाऊं ताकि पीछे से वो बिल दे दे। ये फेमिनिज्म नहीं है। दिस इज नॉट फेमिनिज्म। ये दोगलापन है। और मैं अगर फेमिनिस्ट राइट्स चाहती हूं अपने अब्बा से, तो घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार रहूं कि अब्बा मैं भी घर के लिए कमाई करूंगी। अगर मेरा भाई म्यूजिक करने जाना चाहता है तो मैं आपकी दुकान चलाऊंगी, मैं आपका बिजनेस चलाऊंगी। दैट इज फेमिनिज्म, अ लिव्ड थिंग। इस सिर्फ नारेबाजी नहीं है फेमिनिज्म, वो तो कभी कभी हमें करना पड़ता है। फेमिनिज्म ये है कि मैं किसी घर में बहू बन के जाती हूं और मेरा सबसे पहला काम हो कि मैं सास को इनसिक्योर महसूस न करने दूं। मैं ये समझूं कि उस सास ने इस बेटे को पाला है जो मेरा मियां बना है, तो मैं उस मियां को अपने काबू में करने के चक्कर में अपनी सास के साथ दुश्मनी ना लूं। और अगर मैं फेमिनिस्ट सास हूं तो मैं ये देखूं कि ये दूसरे घर की हमारे घर में आ रही है, तो मैं उसको महसूस ना होने दूं कि वो बहू है, बेटी नहीं है। तो ये जीना पड़ेगा हम लोगों को। और लोग हमारे एक्शन से सीखते हैं, हमारे नारों से नहीं सीखते। So these were two things which I wanted to add, and now I come to your questions. तुमने पूछा कि मेल प्रिविलेज क्या है। यार ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में बताना पड़ेगा मेल प्रिविलेज क्या है। अखा खोलो। हाँ कमला आपा, मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि टेक्निकली ये जो जवाब है ना आपका, ये मर्दों के लिए है। They need to understand the concept of male privilege because women have requested me for you to directly address men in तो our भाई society. मर्दों के लिए भी है। तो मर्द बेचारे कोई अंधे तो नहीं है, मर्द कोई बेवकूफ तो नहीं है, बहुत अक्ल वाले हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो मर्द देखें। अब मैं अपने एग्जाम्पल्स दूंगी, मैं आप लोगों के एग्जाम्पल ना दे सकती हूँ ना मुझे मालूम है। आप मर्द देखें कि जब कमला पैदा होती है तो कोई थाली वाली नहीं बजती, कोई ढोल नहीं बजते, घर में खामोशी छा जाती है। तो मेरे भाई के लिए जब ढोल बजते हैं तो क्या ये प्रिविलेज नहीं है? जब उसके लिए खुशियां मनाई जाती हैं तो क्या ये प्रिविलेज नहीं है?
थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, घर में एक बेटा है, बेटी है, उसको बेहतर खाना दिया जाता है मुझसे, तो उसको दिखता नहीं है कि बहन को भी दूध चाहिए था लेकिन उसको नहीं मिल रहा। मुझे अलग से अंडा दिया जा रहा है, वो भी देख रही है, उसको भी अंडा पसंद है मगर उसको नहीं दिया जा रहा। मैं और वो 4-5 साल के हैं, मुझे बाहर खेलने को भेजा जा रहा है और उसको बाहर जाने से रोका जा रहा है। मुझे खेलने की छुट्टी दी जा रही है, उससे घर का काम कराया जा रहा है। तो हमारे भाई अंधे तो नहीं होते बेचारे, वो ये देखते हैं। और मेरा उनसे सवाल है, उसके बाद मेरे स्कूल में सिर्फ 5वीं तक स्कूल है तो मेरा स्कूल बंद कर दिया जाता है, उसको हॉस्टल में भेज दिया जाता है। वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो उसको अमेरिका भेजने के लिए प्रॉपर्टी बेची जाती है आधी। तो उसको हर तरह से आजादी दी जाती है, मजबूत बनाया जाता है, कपड़ों से मजबूत बनाया जाता है। उसके कपड़े उसको आजाद करते हैं, हमारे कपड़े हमको बांधते हैं, हमारे जूते हमको बांधते हैं, चलने से रोकते हैं, हमारे बाल हमें फंसाते हैं अपनी इन जुल्फों में और हमारे काम को रोकते हैं। ये सब पेट्रियार्की की देन है और हम उस पेट्रियार्की में जीते हैं कि मैं अगर बाल छोटे करा लूंगी तो मर्द मुझे खूबसूरत नहीं समझेंगे, अब मेरे को फेमिनिन होना जरूरी है, ये तमाम चीजें हैं। तो प्रिविलेजेस तो, और आज भी अमेरिका में आप देखिए जो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, सबसे ज्यादा एजुकेटेड मुल्क है, वहां भी आज एक ही काम के लिए फॉर द सेम जॉब women get about 18 to 20% less income. ये प्रिविलेज नहीं है। आज भी अमेरिका में कोई औरत प्रेसिडेंट नहीं बनी, क्या ये प्रिविलेजेस नहीं है? क्यों नहीं बनती? क्योंकि ना वो एजुकेशन है, ना वो आजादी है, ना वो ट्रेनिंग है, ना वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है। तो मतलब हर शोबे में और हर चीज में हम प्रिविलेज हैं। ठीक वैसे जैसे अमीर होने की वजह से मैं अगर खुद को अपनी मेड सर्वेंट से कंपेयर करूं, मैं हर चीज में उससे ज्यादा प्रिविलेज्ड हूं। ठीक इसी तरह हर चीज में मेरा भाई मुझसे ज्यादा प्रिविलेज्ड है। आपके यहां कहा जाता है कि जो औरत की प्रॉपर्टी है वो मर्द की प्रॉपर्टी से आधी है, प्रिविलेज नहीं है। मर्द 4 शादी कर सकते हैं कुछ कानून के मानते हुए, क्या वो प्रिविलेज नहीं है? 2 औरतों की गवाही 1 के बराबर है, क्या ये प्रिविलेज नहीं है उनकी कि वो 1 बराबर है हमारे 2 के? हर चीज में वो सड़क पर चलते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता कि मेरा रेप हो जाएगा, ये प्रिविलेज नहीं है। जब मर्जी वो साइकिल उठाते हैं, मोटरसाइकिल उठाते हैं, कार चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, प्रिविलेज नहीं है। घर में जब उन्हें गुस्सा आता है तो जो मुंह में आता है बोल देते हैं, क्या ये प्रिविलेज नहीं है? बाहर से थके हुए आते हैं और बीवी से कहते हैं कि भाई जल्दी करो, खाना दे दो। बीवी भी नौकरी करती है, क्या वो आके कह सकती है मियां से कि देखो बहुत थक गई हूं, जल्दी से मुझे खाना दे दो? तो प्रिविलेजेस की तो हद है। और मैं इसको समझती हूं क्योंकि मैं दोनों चीजें जानती हूं। मैं क्लास की प्रिविलेजेस जानती हूं जो मेरे पास है, और मैं जेंडर की लैक ऑफ प्रिविलेजेस जानती हूं जो मेरे पास नहीं है। तो शायद मजदूर मर्द हम औरतों को ज्यादा समझ सके, क्योंकि मजदूर जानता है वो सिर्फ मर्द नहीं है, वो मजदूर है, कैसे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। शायद कोई माइनॉरिटी का मर्द बेहतर समझ सके कि कैसे वो कहीं भी महफिल में सर खड़ा होकर जी नहीं सकता, क्योंकि अबे तू तो गलत रिलीजन का है, तेरे ऊपर तो कोई भी इल्जाम लगाया जा सकता है।
तुझे तो कहा जा सकता है कि देश के बाहर चला जा, तू इस मुल्क का है ही नहीं, तू तो पड़ोसी मुल्क का है। तो पेट्रियार्की में पावर मर्दों के पास है। इसमें अब पावर से प्रिविलेजेस आती हैं, तो दे आर प्रिविलेजेस। अब दूसरा कहा कि व्हाई डोंट मेन एक्सेप्ट फेमिनिज्म। बहुत से रीजन हैं, बट सबसे बड़ा रीजन ये है कि उन्हें पेट्रियार्की में इतनी प्रिविलेजेस मिल रही हैं, वो क्यों फेमिनिज्म की बात करें? मतलब पेट्रियार्की तो उनको रास आती है, पेट्रियार्की तो उनको प्रिविलेजेस देती है, राइट्स देती है, प्रॉपर्टी देती है, बेटर एजुकेशन देती है। अब जैसे मैं क्यों अपर क्लास औरत क्लास के खिलाफ काम करूं, मैं क्यों मजदूरों के साथ जाके मिलूं? मेरी क्लास तो मुझे सब कुछ बनाती है। आज मैं जूम पे बैठ के लगा रही हूं, पाकिस्तान से बातचीत कर रही हूं, तुमसे कर रही हूं, मैं क्यों छोड़ूं इसको? तो कितने लोग हैं जो अपर क्लास हैं जो मजदूरों के साथ जाके खड़े होते हैं? नहीं होते। तो मुझे बात समझ में आती है कि मर्द हमारे साथ क्यों नहीं है। लेकिन अगर मर्द भी सोचें, और जो मैं हर बार कह रही हूं, मर्द भी सोचें कि प्रिविलेजेस तो पेट्रियार्की उन्हें देती है, मगर पेट्रियार्की उन्हें नुकसान भी तो बहुत कर रही है। तो क्या वो नुकसान कम नुकसान है कि आप वायलेंट बन जाते हो, आप रेपिस्ट बन जाते हो, आप टेररिस्ट बन जाते हो एज अ मैन? औरत तो कितनी औरतें टेररिस्ट बनी किसी भी मजहब में, कितनी औरतें मियाओं को मारती हैं। औरत खैर बलात्कार तो नहीं, रेप तो नहीं कर सकती। तो मर्दों को देखना होगा कि क्योंकि पेट्रियार्की सिर्फ, और दूसरा चीज, क्या मर्दों की बहनें नहीं है कि उन्हें पेट्रियार्की से खुंदक हो? उनकी बहनें भी तो हैं। तो हर मर्द जिसकी बहन है, जिसकी बीवी है, जिसकी माँ है, उसको पेट्रियार्की से लड़ना नहीं चाहिए क्या इनके लिए, जिसकी बेटी भी है? क्या वो सिर्फ खुद की सोचता है? कमाता तो वो सिर्फ इन लोगों के लिए है। और अगर पेट्रियार्की उसकी जिंदगी की हर औरत की टांग खींच रही है, हर औरत को पर्दों में डाल रही है, हर औरत की आजादी छीन रही है, तो क्या मर्दों को फर्क नहीं पड़ता कि उसकी तमाम औरतों के साथ ये हो रहा है? तो मैं बार 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 ये कहूंगी कि ये लड़ाई, जेंडर इक्वालिटी की लड़ाई, फेमिनिस्ट लड़ाई, औरत और मर्द के बीच की लड़ाई है ही नहीं। पिछली बार भी मैंने कहा था, ये लड़ाई दो आइडियोलॉजीज के बीच है। एक कहती है पेट्रियार्की बेहतर है, दूसरी कहती है इक्वालिटी बेहतर है। सिंपल है। कमला आपा, मुझे ना मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है यहाँ से, जो कुछ हद तक मैं तो समझ सकती हूँ और शायद बहुत सी खवातीन भी समझ सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मर्दों को ऐसी बात सुनने का मौका बहुत कम मिलता है कि पेट्रियार्की का और उनके अंदर वॉयलेंट टेंडेंसीज के पैदा होने का क्या कनेक्शन है। Like they rarely get to understand this connection between patriarchy and them becoming violent and resorting to crimes such as rape, harassment, all of these things. तो अगर हम इस पर थोड़ी सी बात करें। मैं इस पर थोड़ी सी बात तो करूंगी, लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल एग्री नहीं करती जब तुम बार बार कहती हो हम औरतें तो समझ सकती हैं, मर्द नहीं समझ सकते। ये बिल्कुल गलत है। I apologize. No, you've said it. No, just a minute. You've said it twice now. हम औरतें तो समझ सकती हैं। आपको क्या लगता है कि हम सब औरतें पेट्रियार्की को समझ के उसके खिलाफ काम करती हैं? अगर हम तमाम, हाँ, just listen to me now. अगर हम तमाम औरतें पेट्रियार्की को समझ सकी होती तो आज पेट्रियार्की मरने वाली होती। हम औरतें भी पेट्रियार्कल हैं। और एक मिनट, लेट मी फिनिश नाउ, आई एम एंग्री। और अगर किसी भी मर्द ने पेट्रियार्की को न समझा होता तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को कैसे राइट्स दिए होते? वो मर्द नहीं थे क्या? क्या लेफ्ट पार्टीज के मर्द जो हमारे साथ आते हैं वो मर्द नहीं है क्या?
क्या पूरी दुनिया में जिन मर्दों ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे दस्तखत किए थे, 90% of them were men who said men and women are equal? Were they not men? The people who made your constitution and my constitution, 90% of them were men. तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानती कि तमाम मर्द फेमिनिज्म को नहीं समझते। क्या तमाम औरतें समझती हैं फेमिनिज्म को? फेमिनिज्म से औरतें भी उतना ही डरती हैं जितना मर्द डरते हैं। तो पहली बात तो ये समझ लो। तो मैं ये जो बता रही हूं ये दोनों के लिए बता रही हूं, सिर्फ मर्द का कह के मैं उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहती। और चूंकि मेरे फेमिनिज्म में इतने मर्द हैं और हमने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया उसके फाउंडर्स में भी मर्द थे, तो अब मैं ये बताऊंगी कि मर्द कैसे वायलेंट बनते हैं। और दूसरी बात, क्या मर्द हर जगह वायलेंट होते हैं? तो पहली बात तो ये कह दूं, ये कहना कि मर्द जनरली वायलेंट होते हैं बिल्कुल गलत है। क्या मर्द का कोई बॉस उनसे गलत बात करता है तो कितने मर्द अपने बॉस को थप्पड़ मारते हैं? अगर उनका लीडर उनको कुछ गलत कहता है तो कितने मर्द उनका थप्पड़ मारते हैं? मर्द वहां वायलेंट होते हैं जहां उनको पता है कि उनके पास पावर है। जो मर्द घर में वायलेंट होता है वो दफ्तर में अगर क्लर्क है तो पूरे दिन यस सर यस सर यस सर करता फिरता है, भीगी बिल्ली बना घूमता रहता है हर सर के पीछे। और वही मर्द जो दिन भर भीगी बिल्ली बना घूमा है, क्योंकि वहां इन दैट जॉब ही इज द जूनियर मोस्ट, तो ही हैज टू से सर टू एवरीबॉडी देयर, तो वहां दबा रहता है। अब उस बेचारे के पास सिर्फ एक जगह है जहां वो खुल सकता है और दिन भर का गुस्सा किसी पे निकाल सकता है। तो उसको भगवान ने एक बीवी दे रखी है और बच्चे दे रखे। तो पहली बात तो मर्द जगह देखकर, हाल देखकर, हालत देखकर वायलेंट होते हैं, अग्रेसिव होते हैं। हम औरतों जैसे, क्या हम औरतें अपने बच्चों पे थप्पड़ नहीं चलाती? क्या हम सास बन के बहू की ऐसी की तैसी नहीं करती? क्या हम औरतें जो ऑर्गेनाइजेशन में हेड होती हैं हमेशा ठीक बिहेव करती हैं दूसरी औरतों से? क्या हम और औरतों को, कॉलीग्स को अपनी की टांग नहीं खींचती, हमेशा उनको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करती? तो ये भी समझ लें। लेकिन मर्दों को, लड़कों को कैसे वायलेंट, अग्रेसिव बनाया जाता है? आप देख लो, आज इस जमाने में 2-3 साल के लड़के को बंदूक खेलने को दी जाती है। उस बंदूक से वो क्या सीखता है? वो दुश्मन दुश्मन खेलता है पूरे टाइम। 3 साल का बच्चा दुश्मन दुश्मन खेल रहा है, उसको कंपटीशन सिखाया जाता है। लड़कों के सब खेल बॉडीली स्ट्रेंथ पर बेस्ड होते हैं, मोस्ट ऑफ द गेम्स, और सब खेलों में कंपटीशन होता है, हार जीत होती है। तो 4 साल के बच्चे कंपीट करना सीख जाते हैं। और लड़कों के गेम्स क्या हैं? सुपरमैन, स्पाइडरमैन, मतलब सबसे बेस्ट होना सिखाया जाता है। फिर उन्हें आर्मी में भेज के आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। बंदूक बंदूक बंदूक, पूरे टाइम वायलेंस। और बेचारा मर्द, उसको रोने नहीं दिया जाता और कहा जाता है कि तू मर्द है, तू रोएगा नहीं। वो अपनी कमजोरी बयान करना चाहता है। अब्बा से कहता है कि अब्बा मुझे अंधेरे में डर लगता है। भाई बच्चा ही तो है, 5 साल का है। अगर मुझे 5 साल की लड़की को डर लग सकता है तो मेरे भाई को भी तो डर लग सकता है बेचारे को। लेकिन थप्पड़ पड़ेगा बाप से कि तू लड़का होके अंधेरे से डरता है, तो अगली बार वो अपने डर का बयान नहीं करेगा। हो सकता है कुछ साल बाद सुइसाइड कर ले, मगर वो कहना नहीं सीखा कि मुझे डर लगता है। आई डोंट फील कॉन्फिडेंट, ही कांट से।
I'm feeling really sad, he can't say. तो उसको सिर्फ एक इमोशन दिखाना सिखाया गया है, एंगर, वायलेंस, या जहां डरना है वहां हाकिमों के सामने हाँ हाँ हाँ। लड़कियों को कौन से खेल सिखाए जाते हैं? गुड़िया गुड़िया। गुड़िया में क्या होता है? किसी को कपड़े पहनाओ, किसी के लिए खाना बनाओ, किसी को सर्व करो, या वो डॉक्टर नर्स खेलती हैं, कोई बीमार है तो उसको जिंदा करो। तो बेसिकली वी आर टीचिंग गर्ल्स एंड बॉयज थ्रू गेम्स जो उनका फ्यूचर रोल है जिंदगी में। तुमको सबको समझना है, औरत तुझे सबकी नर्सिंग करनी है, सबके लिए खाने बनाने हैं, तो अभी से तू खेल खेल में सीख ले। तो अमीरों की बच्चियां खिलौनों से सीखती हैं, गरीबों की बच्चियां असली बर्तन मांजती हैं 6 साल की उम्र से, असली तीमारदारी करती हैं 7 साल की उम्र से। तो इसी को कहते हैं जेंडरिंग। पेट्रियार्की में ये सब सिखाना पड़ता है। तू लड़का है, अगर ये नेचुरल होता, हमें चलना फिरना नहीं सिखाना पड़ता, हम अपने आप सीख जाते हैं। हमें भूख नहीं सिखानी पड़ती, हमें सेक्स नहीं सिखानी पड़ती, ये तमाम बायोलॉजिकल चीजें हैं। मगर हमें लड़की लड़के का रोल सिखाना पड़ता है, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है, वो सिखाना पड़ता है, मार मार के सिखाना पड़ता है। तू लड़की है, बाहर नहीं जाएगी, तू लड़की है, तू दुपट्टा ओढ़ेगी, तू लड़का है, तू ये कर सकता है, तू लड़का है, तू नहीं रोएगा, तू लड़का है, तू किचन में जाके खाना नहीं बनाएगा। Because these are not natural, they have to be taught. Socialization. What is the word socialization? समाज के बनाए कानून सिखाना, उड़ाना, जबरदस्ती करवाना। जब आप अमीर हो तो आपको अमीर के जैसे जीना सिखाया जाता है कि देख, डोंट प्ले विद दोज डर्टी चिल्ड्रन। हिंदू होने की ट्रेनिंग दी जाती है कि देखो वो मुसलमान बच्चे हैं, उनके साथ खेलना नहीं है तुमको, उनके घर का खाना नहीं खाना है। ये सिखाना पड़ता है, क्योंकि बच्चा तो सबको प्यार करता है, सब बच्चे खेलना चाहते हैं। लड़की को रोका जाता है, रोकना पड़ता है। Why? Because this is unnatural, because this is सोसाइटी के बनाए कानून है, झूठे कानून है, थोपे हुए कानून है, तो सिखाने पड़ते हैं। जी कमलाबा, मुझे बहुत अच्छे तरीके से ये चीज समझ आई है कि किस तरह से हम अपने बच्चों के अंदर ये टेंडेंसीज फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज पैदा कर रहे होते हैं, और समटाइम्स वी डू इट इंटेंशनली एंड समटाइम्स वी डू इट अनइंटेंशनली, and that is how it has become a part of this culture which is reciprocating patriarchy, and all of us are intentionally or unintentionally contributing to it. Having said that, I also like to apologize for the statement that I gave. Apologize to the men, not to me. But मैं वही बताना चाह रही हूँ, apologize to the men, but like where it came from was that at the start majority of our target audience is men, and every time we would post something related to gender-based violence or any statistics, so we would see hundreds of comments from men discrediting entirely the notion of women being subjected to violence at societal level. And we would receive DMs from men only saying that these statistics are wrong. There is no such thing as violence against women in the Islamic Republic of Pakistan. So there is this clear lack of acceptance among women as well as men that violence against women exists in the society. But then again, even then, I apologize to all the men for exclusively addressing them. But yeah, like this is the thought process that I had in mind when I asked that question. I understand. But we, you know, I understand where you came from, but I think it is important to say कि बहुत से मर्द, मैं तो देखती हूँ रोज आपके फेसबुक पेजेस वगैरह, पाकिस्तान में भी बहुत से मर्द हैं
जो आप लोगों को फेमिनिस्ट को सपोर्ट करते हैं। ऐसा ही है। मेरे मेरे खुद के दोस्त दे वर पार्ट ऑफ द औरत मार्च, मैंने उनकी तस्वीर देखी है, उनके फेसबुक पे मैंने मार्क किया है, और कब से, आज से नहीं। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि ये औरत और मर्द का मसला नहीं है। जो नहीं, बिल्कुल नहीं है। यू जो आर एब्सोल्युटली जो राइट। औरत और मर्द बराबरी में यकीन करते हैं, इंसानी हकूक में यकीन करते हैं, उन्होंने हमेशा से बराबरी की तरफ जाने की बात की है। इसीलिए मैं हमेशा प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एग्जाम्पल देती हूँ कि 1400 साल पहले जो हकूक उन्होंने औरतों को दिए, मैं मानती हूँ कि उन्होंने जो हकूक दिए वो पूरी तरह से बराबर नहीं थे, मगर जहां जीरो हक था वहां उसको पर ले आना मतलब कितनी बड़ी बात है। और ये कह देना, कितनी जगह पर कहा गया है कुरान शरीफ में कि औरत और मर्द बराबर है, कितनी जगह। मगर उनको भी ये देखना था कि वो किस माहौल में है। 1400 साल पहले जब लोग कहते हैं ना कि फेमिनिज्म वेस्टर्न है, तो 1400 साल पहले कहां था फेमिनिज्म वेस्ट का भाई? या 2500 साल पहले बुद्धा के पास औरतें गई एंड दे सेड वी वांट टू जॉइन योर संघा एंड द बुद्धा अलाउड देम टू जॉइन। कहां था जी 2500 साल पहले वेस्टर्न फेमिनिज्म कहां था? बिल्कुल ऐसा ही है। This also supports your arguments ना that feminism is contextual, it is indigenous, it is personal, and it is an experience that has to be lived and transformed and transferred through generations so that we can lead and give rise to an equitable and violence-free society. So Kamala, और मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि हम फेमिनिस्ट को घबराना नहीं चाहिए। बार बार कोई सवाल पूछेंगे तो हमें उसके जवाब देने चाहिए। अब मुझे भी फेमिनिस्ट बनने में कितने साल लगे थे, और मैंने आज तक कोई परफेक्ट फेमिनिस्ट नहीं देखी है अपनी जिंदगी में, कहीं नहीं देखी, कोई नहीं देखी। फेमिनिज्म इज ए जर्नी और फेमिनिज्म कॉन्टेक्चुअल है। जब मैंने शुरू किया था तो मुझे ट्रांसजेंडर का इल्म ही नहीं था क्या था, तो आजकल मुझे ट्रांसजेंडर्स के बारे में पढ़ना पड़ रहा है। ब्लैक फेमिनिस्ट के बारे में मुझे नहीं मालूम था, डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के बारे में नहीं मालूम था। तो हम फेमिनिस्ट को इरिटेट नहीं होना चाहिए जब हमसे सवाल पूछे जाते हैं, जब हमें क्रिटिसाइज किया जाता है। आप ये मत समझो कि जैसे ही आप ये समझाना शुरू करोगी तो तालियां बजेंगी और आपको हीरो मान लिया जाएगा। अगर इतना आसान होता तो जिस दिन आपका और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1947 में, तो सब फेमिनिस्ट हो गए होते बीबी। अमेरिका में रेप खत्म हो गए होते। तो आप ये मत सोचो कि अब हीरा ने शुरू किया है तो बस कल से हीरा की बात सब मान के पाकिस्तान फेमिनिस्ट हो जाएगा। तो हीरा बीबी होने वाला नहीं है ये। आप जरा मैं यहाँ पे एक और बात भी ऐड करना चाहूंगी कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने बात की ना, तो अगर मैं इसको अपने ऊपर भी अप्लाई करूँ, तो यस, देयर इज एवरी डे आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स अबाउट बीइंग अ फेमिनिस्ट. Every day is a new day. Every experience positively and negatively contributes to my understanding of feminism as well. So sometimes at societal level we get to hear statements such as these कि पहले तो तुम ऐसी थी बट अब ऐसी हो गई हो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उससे डिस्करेज हों। मतलब you can always proudly say that it is also part of my journey, that I am learning new things every day and I'm picking up positives from that, and that is becoming part of me as a feminist, and that is my feminism as well. And it is a constant journey and a process that will keep on improving. So this is also something that we young people need to understand in order to not get discouraged by a lot of criticism that we receive all the time, Kamlapa, every day at our workplaces, at our homes. मतलब अब ये कहना ना कि मैं हूँ, I exist, is something that attracts a lot of criticism from all directions. So we have to be strong in the face of. वो डरे भी हुए हैं ना, उनको लगता है
रॉन्गली लगता है कि उनकी गद्दी हिल रही है, मगर रॉन्गली लगता है। हम तो ये समझते हैं कि जब औरत आजाद होगी तो हमारे भाई, हमारे अब्बा, हमारे मियाँ भी आजाद होंगे, क्योंकि आजाद औरत उनको ताकतवरी बना सकती है। हमारा प्रोटेक्शन नहीं करना पड़ेगा, हमारा दहेज नहीं ढूंढना पड़ेगा, हमारे लिए लड़के नहीं लाने पड़ेंगे ढूंढ ढूंढ के, तो वी कैन बी देयर पार्टनर्स रादर देन देयर डिपेंडेंट्स। तो डिपेंडेंट, ऐसी बिल्कुल। और बातों की जैसे बहुत वो जरूरत एक है। बड़ी, हाँ जी, और जी मैं ये जी कह जी रहा हूँ शायद तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है, तो शायद तुम्हें खत्म भी करना पड़ेगा। जी जी जी, मैंने असल में कमला पर टाइम एक्सटेंड करा दिया था, इसी वजह से थोड़ा सा सेशन मतलब जूम लिंक का मैंने आगे कर दिया था कि इन केस अगर हम थोड़ी सी बात आगे लेके जाते हैं। लेकिन आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट सो मेनी थिंग्स एंड टुवर्ड्स द एंड में एक और चीज ये जरूर कहना चाहूंगी कि आज का मेरा टेक अवे तो यही है कि फेमिनिज्म इज अ लिव्ड एक्सपीरियंस and you are living it every hour, every second of every day, and it is helping you become a better person. And you need to accept it rather than resist it. It is very, very important to accept it because it is going to take you towards a positive direction. एक और चीज मैं आपसे ये कहना पूछना चाहूंगी कमला आपा टुवर्ड्स द एंड कि अभी तक हम लोगों ने 3 सेशंस किए हैं और तीनों में कहीं ना कहीं मीडिया का जिक्र जरूर आया है। मतलब जैसे आपने आज भी बात की कि मीडिया कैसे कंट्रीब्यूट करता है पेट्रियार्की को और किस तरह से मीडिया हायरार्कीज क्रिएट करता है vis-a-vis feminists as well कि a lot of women who are feminists working at the grassroots level they don't get the exposure and experience to talk about। तो मीडिया एक तो पेट्रियार्की को सपोर्ट भी कर रहा है बट दूसरा वो डिस्क्रिमिनेशन भी यू नो unintentionally it's leading to discrimination in the society. So would you want to have a session in which we explore how media, what is the role of media in terms of contributing to patriarchy and how it is affecting all of us and subliminally feeding us things that lead to patriarchy at the societal level? We can, we'll talk about it. We can do that. But I thought that the fourth session was going to be about campaigns and movements which are going on. We can go ahead as planned and then we can see if we can do a session on media as well. Oh, Totally your call. I'll just follow the lead. yeah, we'll decide that outside of this live ठीक। Facebook. चलें, कमला आपा, any concluding remarks? मैं तो जो बोलती हूँ कंक्लूडिंग होता है। Thank you so much, Kamalapa. It was wonderful having you here. And with that, I'm going to take your leave. It was amazing. मुझे तो बहुत मजा आया।